کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اے ابو درداء تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا حق اللہ کا حق صرف تمہارے اوپر ہے کہ تم صرف روزہ رکھو, تم صرف نماز پڑھو. نہیں نہیں, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, اور وہ حق یہ کہ تم اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرو. بیوی اگر تمہیں اگر اپنی خواہش کی طرف بلائے, بیوی اگر تمہیں جمع کرنے کے لیے بلائے, بیوی اگر ہم بستری کرنے کے لیے بلائے, تو صرف تم ان کو یہ نہ کہو کہ میں تو دن میں روزے سے رہتا ہوں اور رات کو تہجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. نہیں نہیں, تمہاری بیوی کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان سے ہم بستر بھی ہو, تم ان سے جمع بھی کرو, اور ان کی ضروریات جو چیزیں ہیں تم ان کو پورا کرو. کپڑا لانے کے لیے کہے, مارکیٹ جاؤ کمانے کے لیے, کشن گنج جاؤ, یہ دولت چوک میں ایک دکان کھول دو, یہاں بیپاری کرو, یہاں تجارت کرو, یہاں بزنس کرو. اگر یہاں پیٹ نہیں بھرتا ہے تو اور آگے جاؤ, اپنا بزنس اور آگے بڑھاؤ. لیکن ہاں, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرو. یہ مت سوچو کہ صرف اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے کہ نماز پڑھتے رہو. بیوی ہے, بیوی کو کھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. بیوی کا بھی حق ہے, مہمان کا بھی یہ حق ہے. مہمان تمہارے گھر میں آیا ہے, تم یہ سوچو کہ ہم مسجد چلے گئے, تم یہ سوچو کہ ہم کہیں اور چلے گئے. نہیں نہیں, عبادت. اگر مہمان کو بھی کھانا کھلا رہے ہو تو یہ بھی عبادت ہے. مہمان گھر میں ہے تو مہمان کو کھانا کھلانے کا انتظام کرو. مہمان کو کیا ضرورت ہے تو ان سے پوچھو. میرے پیارے ساتھیوں, جو چیزیں اسلام نے جائز قرار دیا ہے, جو بھی ضروری چیزیں ہیں, ضروریات کی چیزیں ہیں, تم ان کو کما حق ادا کرو. میرے پیارے ساتھیوں, پھر ایسا ہوا, یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا, تو آپ نے فرمایا صدق سلمان, سلمان نے بالکل سچ کہا ہے. تو اس واقعے سے پتا چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے. اور حدیث میں صرف یہ نہیں کہا کہ آپ صرف روزہ رکھیں, آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے بیوی کو کھلائیں, بچوں کو کھلائیں. مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی کریں, آپ میزبان بنے, آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, مہمان آئے تو گھر سے فرار. یا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, مہمان گھر میں کوئی شخص باہر سے آیا ہوا ہے, اپنے بیٹے کو کہتا جاؤ کہہ دینا ابو گھر میں نہیں ہے. بیٹا اگر ہوشیار ہو, چھوٹے ہی بچے کو عموماً بھیجتے ہیں, اگر ہوشیار ہو یا پھر دماغ کام نہ کرے تو کیا کہہ دیتے ہیں, ابو بولے ہیں کہ بولنا ابو گھر میں نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں, اسلام نے اگر مہمان گھر میں آئے تو بھی اس کی عزت کرنا عبادت ہے, صرف نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے. تو اس غلط افواہ میں آپ نہ پڑیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے تجارت کرنے سے منع نہیں کیا ہے, اسلام نے تجارت کرنے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تجارت کا جو مال ہوتا ہے سب سے عمدہ ہوتا ہے, تجارت کا پیسہ جو ہوتا ہے عمدہ ہوتا ہے. جب عبادت ختم ہو جائے, جب نماز مکمل ہو جائے, عبادت پوری ہو جائے تو تجارت کرنے میں لگ جاؤ. میرے بھائیوں, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, کب آپ کو کون دھوکہ دے دے, یہ زندگی بڑے دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائیوں, ومتاع الحیات الدنیا ومتاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں اس دھوکے کے چکر میں نہ پڑے. میرے بھائیوں, کما کر خود آپ کو کھانا ہے, تجارت آپ کو کرنے, بزنس آپ کو کرنا ہے. اسلام نے آپ کو نہیں روکا ہے, لیکن ہاں وہ حلال بزنس ہو, وہ حلال تجارت ہو, اسلام نے جائز قرار دیا ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں, یہ دنیا میں چلنے کے لیے آپ کو, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کے قدم پہ قدم ملا کر چل رہے ہیں, شانہ بشانہ ہو کر چل رہے ہیں, تو کوئی ہم کو گرانے والا نہیں. نہیں نہیں, کما کر آپ کو خود کھانا ہے, آپ کو بزنس کرنا ہے, آپ کو تجارت کرنی ہے, اور اس تجارت کے مال سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. اس تجارت کے مال سے, منافع سے اگر آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے.
हम और आप भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा भाई है, हम भरोसा कर लेते ये मेरा बाप की प्रॉपर्टी में खाएंगे, हम और आप भरोसा कर लेते हैं ये मेरा फला जिगरी दोस्त है, ये मेरा हर जगह पे काम दे देंगे। नहीं नहीं मेरे भाइयों, कमा कर खुद आपको खाना है। दुनिया में आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे। एक वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, हर दो आदमी के दरमियान दरार पैदा करने वाला तीसरा आदमी मौजूद है। आप कारोबार कर रहे हैं, आपके साथ कोई दूसरा भाई जुड़ा हुआ है, आपकी और उनकी दोस्ती देखकर तीसरे आदमी को पसंद नहीं आएगा और आपके बीच दरार पैदा करने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे साथियों, और वो ऐसा समझेगा कि हम इनके दरमियान दरार पैदा कर देंगे तो इनके रोजी में बरकत नहीं होगी। आइए एक मिसाल दे रहा हूँ, एक वाकया बता रहा हूँ मेरे भाइयों। जंगल के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ था, एक शेर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है। ये कुत्ता देख रहा है कि शेर मेरे ऊपर दहाड़े, अगर मैं यहां से भागूं तो कितना ही भाग सकता हूं, शेर मुझसे ज्यादा दौड़ पाएगा और मेरे ऊपर हमला कर देगा, मैं कितना भागूं। बेहतर है कोई चाल चला जाए, कोई साजिश की जाए मेरे प्यारे साथियों, कोई हीला इख्तियार किया जाए। वो कुत्ता उसी जगह पे बैठ गए, चार पैर फैला दिए और बैठ गए। जैसे शेर करीब आया वो कुत्ता कहने लगा, बड़े जोर जोर से डकार रहा है और कहने लगा, काश कि आज कोई शेर मिल जाता तो मैं अपना भोजन करता, काश कि आज कोई शेर मिल जाता तो मैं उसको खाना खाकर अपना पेट को आसूदा कर लेता। ये शेर समझ गए ये कुत्ता बड़ा डेंजर है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से भाग जाएं। यहाँ से भागना ही बेहतर है क्योंकि ये बैठ गया है, बड़े जोर से डकार रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ऊपर हमला कर दे। हालांकि कुत्ता ने हीला इख्तियार किया, अब तो भागा नहीं जा सकता है, भागेंगे कुत्ता और पीछा करे, शेर और पीछा करेगा। मेरे प्यारे साथियों, शेर ये सोचकर उस जगह से भाग जाता है, लेकिन इतने में कि बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और ये सारा माजरा देख रहा था। बंदर ने सोचा कि कुत्ते ने तो शेर को बेवकूफ बना दिया और ये शेर भाग भी गया, बेहतर है कि हम उस शेर को बता दें कि कुत्ते ने ऐसी साजिश रची है, कुत्ते ने ऐसी चाल चली है, हम इस कुत्ते की हीला को बता दें। मेरे भाइयों, कुत्ते की जान बच गई, शेर चला गया, लेकिन बीच में दरार पैदा करने वाले तीसरा आदमी, ये तीसरा जानवर बंदर, उनको क्या जरूरत थी, लेकिन हाँ वो शेर के करीबी होने के लिए जल्दी से नीचे उतरे और दौड़ता हुआ शेर के पास चला गया। और शेर के पास जैसे क्या, शेर कहने लगा, क्या बात है बंदर, दौड़े दौड़े आ रहे हो। बंदर कहने लगा, शेर मैं तुझे एक बात बताने के लिए आया हूँ। वो बात क्या है? बंदर कह रहा कि शेर, ये जो कुत्ता जिनको तुम देखकर भाग आया हो, जिनके डर से तुम भाग आया हो, इस कुत्ता के अंदर कोई पावर नहीं है, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है, ये तो तुम्हें बेवकूफ बनाया है, ये अपनी जान बचाने के लिए हीला इख्तियार किया है, साजिश रची है। ऐ शेर तुम जल्दी जाओ और उनके ऊपर हमला करो। शेर कहने लगा, वाह हकीकत में मुझे बेवकूफ बनाया। शेर कहता है, बंदर मेरे पीठ पे सवार हो जाओ। वो बंदर उनके पीठ पे सवार हो गया और शेर जल्दी से दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। फिर जब कुत्ते के पास आया, कुत्ते ने देखा कि बंदर ने मेरी शिकायत कर दी, बंदर ने फिर मेरे बारे में बता दिया, तो फिर कुत्ते ने एक और चाल चली। क्या चाल? जब शेर करीब आया, उनके पीठ के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, ये कुत्ता कह रहा है, ढकार रहा और कह रहा है, मैंने एक बंदर को भेजा था शेर को पकड़ कर लाने के लिए, मैंने बंदर को भेजा था कि शेर को पकड़ लाओ ताकि मैं उससे जल्दी जल्दी खाऊं और अपने पेट आसूदा कर लूं। ये शेर समझ गया कि जरूर ये बंदर कोई जासूस है, जरूर ये बंदर कोई जासूस है जो मुझे यहाँ तक ला रहा है ताकि ये जानवर मुझे खा जाए। फिर वो जल्दी से उस बंदर को नीचे फेंका और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। तो मेरे भाइयों, उस बंदर को क्या जरूरत थी उस कुत्ते को मरवाने के लिए, उस कुत्ते की जान दिलवाने के लिए, जान लेने के लिए। मेरे भाइयों, पता चला दुनिया में भी कोई दो इंसान को आप देखेंगे चलना उठना बैठना एक साथ हुआ करता है, लेकिन तीसरे आदमी को जलन हो जाएगा, ये दोनों आपस में दोस्ती कर रहा है, ये इनका साथ दे रहा है, ये इनका साथ दे रहा है, ये तो माल और औलाद में आगे बढ़ जाएंगे। फिर तीसरा आदमी बीच में घुस जाता है, तीसरा आदमी बीच में दाखिल हो जाता है, ये इनकी बात उनको बताता है, उनकी बात इनको बताता है, और मिर्ची
मसाला लगाकर उन दोनों के दरमियान दरार पैदा कर देता है, दुश्मनी पैदा कर देते हैं ताकि ये दोनों बिछड़ जाएं, ताकि ये दोनों मेरे भाइयों अलग हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, वहां बंदर ने शेर को इसलिए बताया ताकि वो शेर का करीबी रिश्तेदार बन जाए, शेर उनको ना मारे। शेर का करीबी रिश्तेदार बनने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया ताकि कुत्ते को मरवा सके और शेर भी समझ सके कि बंदर ने मुझे अपना बताया तो उसका करीबी बना दिया। कुछ लोग आप देखेंगे गांव में कुछ बुराई हो रही है या फिर मान के चलिए शराब कहीं पे पी जा रही है और किसी ने देख लिया, वो आदमी प्रशासन के करीब होने के लिए, प्रशासन से जुड़े रहने के लिए ये गांव में जो मामला हुआ वो उनको जाकर बताते हैं। किस लिए बताते हैं? ताकि वो उनके करीबी बन जाए। मेरे भाइयों, ऐसे भी आज लोग देखेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस से जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो कांग्रेस के कुछ खिलाफ जाकर बीजेपी को कर दिए। बीजेपी ने उन्हें अपना एमएलसी का टिकट दे दिया, एमएलए का टिकट दे दिया, वो उनके करीबी बन गए। और सेम ऐसा मामला फिरौन के जादूगरों के साथ हुआ था। जब मुकाबला हुआ था, फिरौन ने कहा था, मूसा अगर तुम्हें अपने जादू में इतना ही पावर है, इतनी ही ताकत है, चलो मुकाबला करवा लो। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया और कहा कि मूसा से मुकाबला करो और हर हाल में जीतना है। लेकिन जादूगरों को भी बड़ा कॉन्फिडेंस था, एतमाद था, भरोसा था। कहने लगे, ऐ फिरौन, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे बादशाह, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत गए मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा को हरा दिए, मूसा के जादू हम पर मगलूब हो गए, हम जीत गए, तो आप हमें इनाम में क्या दोगे? भरोसा था, आपस में कंपटीशन हो। मसलन अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल मैच चल रहा हो मोदी जी स्टेडियम में, और मोदी जी ये कह दें या फिर उनकी पार्टी ये कह दे कि हम जिता कर ही दिखाएंगे, आए देश के माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी, अगर हम जिता कर दिखा दे तो आप हमें इनाम में क्या दोगे? उसी तरह से वही मामला वहां पर भी हुआ। फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा, आए फिरौन, आए मेरे मालिक, आए मेरे बादशाह, अगर हम जीत गए, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत गए तो आप हमें इनाम में क्या दोगे? फिरौन ने ये नहीं कहा कि आए मेरे सिपाहियों, आए जादूगरों, आए नजूमियों, हम तुम्हें इतना लाख रुपए इनाम में देंगे, हम तुझे ट्रॉफी देंगे, हम तुम्हें इनाम में ये देंगे। नहीं नहीं, बहुत बड़ा खतरनाक जुमला इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, फिरौन ने कहा, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, आए जादूगरों, अगर तुम जीत गए तो हम तुझे अपना करीबी बना लेंगे। आए जादूगरों, अगर तुम जीत गए तो हम तुझे हमारे साथ उठना बैठना एक साथ किया करेंगे, हम तुम्हारे मशवरे से काम किया करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो तुम्हारे मशवरे से करेंगे, हम तुझे अपना करीबी बना लेंगे। मेरे भाइयों, इनाम से बढ़कर, 1 लाख रुपए से बढ़कर, 2 लाख रुपए से बढ़कर, जायदाद से बढ़कर, मालो दौलत से बढ़कर ये है कि आपको किसी का चमचागिरी करने मिल जाए, आपको उनके साथ उठना बैठना करने मिल जाए। वो इंसान अगर मान के चलिए मोदी जी किसी को 1 लाख रुपया दे, उनकी जितनी इज्जत नहीं होगी, इज्जत उनकी उतनी होगी जब वो मोदी जी के साथ चलना उठना बैठना करेंगे। मेरे भाइयों, पार्लियामेंट में जब कोई मामला पास होगा तो वो उनके राय और मशवरे से करेंगे, तो ये उनके लिए शान है, ये उनके लिए मकाम है, ये उनके लिए मर्तबा है, ये उनके लिए जाहो जलाल है, जाओ मनसब है। मेरे प्यारे साथियों, तो फिरौन ने कहा था कि हम तुझे व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, हम तुझे अपना करीबी रिश्तेदार बना लेंगे, करीबी बना लेंगे। मेरे भाइयों, तो यहां बंदर ने भी वैसा किया था। मैं ये कह रहा हूं कि हर दूसरे आदमी के दरमियान तीसरा आदमी दरार पैदा करने के लिए, इसलिए आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, मजबूत खुद होना है। कभी ये मत सोचिए कि वो ऐसा है तो हमारा भी काम चल जाएगा, कभी भी आप जुदा हो सकते हैं। ये दुनिया बड़ी शादी से मेरे भाई धोखे का सामान है, हमें और आपको इसके पीछे नहीं पड़ना है। मैं ये कह रहा था, इस्लाम ने आपके लिए जायज करार दिया है कि आप तिजारत कीजिए, इस्लाम ने आपके लिए जायज करार दिया है कि दुनिया कमाइए। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे, रब्बना आतिना फिद
दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आए हमारे परवरदिगार वक़िना अज़ाबन्नार, आए हमारे परवरदिगार तू हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत में दुनिया की भी भलाई हासिल कर सकते हैं, आखिरत की भी भलाई हासिल कर सकते हैं और जहन्नम के अजाब से भी बचने के लिए अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। दुनिया की भलाई क्या है मेरे भाइयों?